नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। कर्नाटक से हुंकार है जूनियर खरगे की, जो कर्नाटक में गृह मंत्री है प्रियांक खरगे। मैं तो गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में फंसे मोदी, राहुल के मंत्री का खुला चैलेंज, मोदी एंड कंपनी आएगी या भागेगी। अब राहुल का मंत्री खुला चैलेंज देता है और एक गृह मंत्री है कम से कम जो इस्तीफा देने को तैयार है। बाकी तो आजकल इस्तीफा देने के लिए तैयार होते नहीं। हमारे नींबू मिर्ची छाप जो मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने तो खुले चौड़ा होके कहा था ये एनडीए भाई, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में होते होंगे। क्योंकि यूपीए में भी जवाबदेही थी, यूपीए में थोड़ी नैतिकता थी। यह नैतिकता और जवाबदेही दोनों विरोधार्थी शब्द है, विपरीत अर्थ के शब्द है, इसलिए इनको कोई जगह नहीं उनमें, तो इस्तीफा तो होता नहीं। ऐसे माहौल में यदि कोई इस्तीफा दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या चैलेंज दिया, तो एएनआई का एक पोस्ट है, वो पोस्ट देखिए क्या कहता है। अंग्रेजी में पोस्ट है, वो पहले पोस्ट पढ़ता हूं। ऑन सीडब्ल्यूसी रिजोल्यूशन ऑन वंदे मातरम, कर्नाटका मिनिस्टर प्रियांक खरगे सेज दिस इज अ tactic of divert from Jantar Mantar protest, RSS misgiving, unemployment issue, economic issue. The rupee to dollar rate is now 98. We did the US trade deal where we have to buy $500 billion worth of trade goods from America, and all this is to divert that. Who are these people to tell us about Vande Mataram? If there are really such patriotic people, let Amit Shah or Narendra Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwat to drop the RSS song from henceforth and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS branches. I challenge the entire BJP cabinet to sing the national song fully without teleprompter. I will resign then only. Vande Mataram is the tactic to divert from Jantar Mantar protest. Vande Mataram issue is a tactic to divert from RSS misgivings. Vande Mataram is the tactic to divert from unemployment issue, economic issue. What is the rupee versus dollar rate now? 98. 98 rupees. This is what they are doing. The US trade deal, where we have to buy 500 billion, I guess, dollars worth of goods from America. All this is to divert that. Ek FIR is diversion, is it, for Vande Mataram? And who are these people to tell us about Vande Mataram? Where were BJP and RSS during the freedom struggle? In 1937, when Pandit Nehru, Netaji Bose, Rabindranath Tagore ji, Sardar Patel ji, they discussed it. This was discussed in Constituent Assembly debates also. That means all these people are anti-nationals. We don't have to learn anything from BJP. If they are really such patriotic people, let Mr. Amit Shah and Mr. Modi go to Nagpur and tell Mohan Bhagwat ji, sir, please drop Sada Vatsale, the RSS song from henceforth, and ensure that Vande Mataram is sung in all RSS shakas with your hands folded to the tricolor. ऐसा नमन कीजिए राष्ट्रीय ध्वज को और वंदे मातरम गा लीजिए. Then I will tell that you are actually heading towards patriotism. And I challenge Mr. Amit Shah and Mr. Modi and the entire BJP cabinet, without teleprompter, let them sing our national song fully, including the last two stanzas. I will only resign them. Without teleprompter, can these people even sing anything or even speak anything? अब इसके मायने ये है कि सीडब्ल्यूसी ने जो रिजोल्यूशन लिया कि हम सिर्फ 2 स्टांजा पढ़ेंगे वंदे मातरम के, जो 1937 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था। मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं, क्योंकि इशू ऐसा है कि इसको बार-बार बताना पड़ रहा है। ये जितने भाजपा संघी है, ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस ने
इस गीत को तोड़ा। कांग्रेस ने मुसलमानों का अपीजमेंट के लिए तोड़ा। ये बार-बार कह रहे हैं। यहां तक हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वीडियो रिलीज करके ये बता दिया कि जिस दिन ये गीत तोड़ा उसी दिन पाकिस्तान की नींव रख गई थी, देश के विभाजन की नींव रख गई थी। इन लोगों का प्रॉब्लम यह है कि इनका इतिहास है नहीं और ये इतिहास पढ़ना नहीं चाहते। ये गीत एक कथानक के बीच का गीत है और इस गीत को जो पहली लाइन थी वंदे मातरम, नारे के रूप में कई लोगों ने अपनाया। मातृभूमि की जय जयकार। और आगे जब ये गीत आया तो सबसे पहले कांग्रेस ने ही इसको अडॉप्ट किया और कांग्रेस ने ही इसको राष्ट्रीय गीत का, नेशनल सॉन्ग का वो दिया, स्टेटस दिया और ये गीत गाने लगे। तब संघ और संघ से जुड़े तमाम लोग इस गीत का विरोध कर रहे थे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य के नोबेल विजेता है। उन्होंने कहा कि इस गीत के कुछ स्टांजा कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गुरुदेव आप खुद साहित्यिक है, बंगला में लिखा हुआ गीत है, आप ही एक कमेटी बना के इस पे डिसीजन ले लीजिए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 लोगों की कमेटी बनाई जिसमें वो स्वयं थे, जवाहरलाल नेहरू को रखा और सुभाष चंद्र बोस को रखा। अब सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दोनों बंगाली और जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के सामने तो बोलते ही नहीं थे, वरिष्ठ थे उनसे। तो उन्होंने इस गीत के सिर्फ 2 स्टांजा अप्रूव किए और बाकी 4 स्टांजा ड्रॉप किए और ये रिजोल्यूशन 1937 में हुआ। ये कांग्रेस का नहीं है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का डिसीजन है। आज आप कांग्रेस को गाली नहीं दे रहे, ये 1937 में हो गया, लेकिन 1923 में ही सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी इस देश में फ्लोट की थी। तो 1923 पहले आता है या 37 पहले आता है? ये इन पागलों को समझ देना चाहिए जो बिल्कुल कूपड़ है, गोबर भरा हुआ है और बस इसी को इशू बना रहे हैं। सवाल वंदे मातरम गाने का नहीं है, वाकई मातरम वंदे है क्या? आज भारत की स्थिति क्या है? और यही आगे खरगे बोलते हैं कि वंदे मातरम प्रोटेस्ट जो है ये एक आपका टैक्टिस है, एक षड्यंत्र है। मुख्य जो प्रश्न है देश के सामने उससे आपको लोगों का मन हटाना है। क्या इश्यूज है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फैलाए गए मिथक तथ्य या मिथ, झूठ, फैला गया झूठ, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियां जो फेल हो रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया 98 रुपए पे आ गया है, हमने अमेरिका के साथ $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे ये ट्रेड डील किया है। ये सारी समस्याएं हैं देश के सामने और आप कौन होते हुए भाई हमको ये बताने के लिए वंदे मातरम कैसा गाना है? आप हमको सिखाओगे देशभक्ति क्या है? और यदि आप वाकई देशभक्त और वंदे मातरम के प्रति इतना समर्पित हो तो अमित शाह और मोदी जी दोनों जाए नागपुर, रेशम बाग और वहां मोहन भागवत को बोलो ये जो नमस्ते सदा वत्सले कहते हो उसके जगह वंदे मातरम शुरू करो। छोड़ दो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, छोड़ दो वो प्रार्थना, उसके जगह वंदे मातरम चालू करो यदि आप में दम हो तो, यदि आप पैट्रियोटिक बनते हो तो, और पूरे देश के ब्रांचेस में गाना शुरू कर दो। मैं तो पूरी बीजेपी के कैबिनेट को चैलेंज करता हूं, केंद्र की कैबिनेट को,
कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर या बिना मोबाइल पे देखे पूरा वंदे मातरम गा के दिखाए। वंदे मातरम में पूरा गा नहीं सकते बगैर पढ़े, वंदे मातरम समझ नहीं सकते, वंदे मातरम का मीनिंग क्या है ये बता नहीं सकते, लेकिन वंदे मातरम के लिए गाना जरूरी है। जिनको भारत का राष्ट्रगीत जनगण मन पूरा नहीं आता, कई बार टेस्टिंग किया है लोगों ने, सांसदों को जनगण मन पूरा नहीं आता, वो लोग ज्ञान देते हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या है और राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या है। देश कई समस्याओं से जूझ रहा है और कांग्रेस ने, ये तो कांग्रेस को कोई पार्टी मानते ही नहीं, कांग्रेस को तो अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं मानती, और कांग्रेस नहीं गाती दोस्ताना तो क्या होगा? हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, आसमान थोड़ी फटेगा। नहीं गाने दो कांग्रेस को वंदे मातरम, आप पूरा गाओ, लेकिन वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, क्या भारत की स्थिति सुजलाम सुफलाम है कि दुखलाम कष्टलाम है? क्या है भारत की स्थिति? कहीं बाढ़ है तो कहीं पानी नहीं है, पीने के पानी का संकट है। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोग मर जाते हैं। बिजली नहीं आती पूरी, 70-80 साल हो गए आजादी को, आप बिजली नहीं दे सकते, एग्जाम कैंसिल हो गई, अभी बिजली सेंटर में बिजली ही चली गई। अभी जयपुर की कल की बात है, बाढ़ से लोग मर रहे हैं, किसान परेशान है, महंगाई इतनी है कि शक्कर 80 रुपए पहुंच गई है। ये तमाम बातें सामने हैं, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन इनका सारे दुनिया के सामने एक ही बात है कि वंदे मातरम की, वंदे मातरम, वंदे मातरम के आगे सुजलाम सुफलाम, इस पे ध्यान दीजिए। और ये ध्यान आपको देना है क्योंकि आप सत्ता में हैं। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे प्रियंक खरगे का, मैं सैल्यूट करता हूं प्रियंक खरगे को कि वाकई उसने सही पिन पॉइंट किया। आपको वंदे मातरम से प्रेम नहीं है, आपको डर है कि कहीं समस्याओं का बखान शुरू न कर दे। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।